سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے خواتین کے پردے سے متعلق سوال اٹھایا تو انہی کے معاون خصوصی طاہر اشرفی نے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے دیا۔ کہا مرد کے لیے بھی آنکھوں کا پردہ اتنا ہی لازم ہے جتنا عورت کے لیے مناسب لباس۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں مردوں کے لیے نظریں جھکا کر چلنے کا حکم ہے اور فحاشی سے بچنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی نے لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران بھی یہی بات کہی۔ وزیر اعظم نے جو حجاب کے حوالے سے گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ قرآن و سنت کی بات ہے۔ اس کو صرف یہ کہہ دینا کہ یہ صرف عورتوں تک ہے، مردوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ فحاشی اور ریانی پھیلائیں؟ مردوں کو بھی ہے کہ آنکھیں نیچی کریں۔ مگر وزیر اعظم عمران خان تو کہتے ہیں زیادتی کے واقعات کی وجہ خواتین کا لباس ہے اور مرد روبوٹ نہیں۔ If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men unless they are robots. وزیر اعظم نے صرف تصویر کا ایک رخ دکھایا، دوسرا رخ کسی اور نے نہیں، خود ان کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی نے دکھایا۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ باری صاحبہ، جو کہ سماجی کارکن ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ آپ کے وقت کا۔ وزیر اعظم عمران خان نے عورتوں کے لباس سے متعلق بیان کی۔ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ اللہ نے صرف عورتوں کو ہی نہیں مردوں کو بھی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کیسے دیکھتی ہیں آپ ان بیانات کو؟ دیکھیں، ایسے تو جو ان کا کہنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے بیان کو جو ایک بالکل ڈیفینس لیس بیان ہے، جس بیان کی تجزیہ بیان کرنا اور یہ کہنا کہ جی وہ سیاق و سباق میں نہیں دیکھا گیا، میرا خیال ہے یہ بالکل ہی جو ہے غلط بات ہے۔ ان کو چاہیے پہلے تو کہ جو عمران خان نے بات کی اس کی ان کو مذمت کرنی چاہیے تھی، اور باقی یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ اسلام میں مردوں کو بھی حیا کا حکم ہے اور نظریں نیچی کرنے کا ہے، تو یہ بات تو بالکل درست ہے۔ ہم تو یہ بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ حیا کا تعلق جو ہے وہ لباس سے نہیں ہے، وہ آپ کی نظر کا پردہ ہے جو عورت کے اوپر بھی فرض ہے اور مرد کے اوپر بھی فرض ہے۔ ٹھیک ہے، فرزانہ باری صاحبہ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد تشدد بڑھنے کا خدشہ ہے، جس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا۔ پاکستان نہیں چاہتا کہ مزید مہاجرین یہاں آئیں۔ بھارت نے FATF کا فورم پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی۔ ہم کسی کے کہنے پر نہیں، اپنی قومی ضرورت کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپنے ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی طرف آگے بڑھے ہیں اور انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ جب انخلاء ہوگا، خدا نہ خواستہ وہ خانہ جنگی کی شکل اختیار کرتی ہے، تو اس کا بے پناہ نقصان افغانستان کو ہوگا، اور افغانستان کے بعد اگر کوئی ملک اس کی زد میں آ سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ FATF کے ممبران کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا یہ فورم ٹیکنیکل فورم ہے یا پولیٹیکل فورم۔ اگر تو یہ ٹیکنیکل فورم ہے جو کہ ہے، تو پھر پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی جواز نہیں ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں مزید رکھا جائے۔ بھارت نے بالخصوص اس فورم کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی ہے اور سمجھتی ہیں کہ ان کے مقاصد حاصل تب ہو سکتے ہیں کہ پاکستان پر یہ مسلسل تلوار لٹکی رہے۔ سندھ میں کرونا پابندیوں میں مزید نرمی کر دی گئی ہے۔ صوبے میں کل سے تمام مزارات کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ زائرین کو 10 منٹ تک مزارات میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ شہری سوئمنگ پول اور امیوزمنٹ پارکس بھی جا سکیں گے۔ اسی بارے میں آزاد نوڈیو کی رپورٹ دیکھیے۔ کورونا کیسز میں کمی کے بعد سندھ حکومت نے عوام کو خوشخبری سنا دی۔ لاک ڈاؤن پابندیاں میں مزید نرمی کے بڑے فیصلے کر لیے۔ سندھ میں تمام مزارات سمیت انڈور سپورٹس سوئمنگ پول کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام مزارات پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا لازمی ہوگی۔ زائرین اور عملے کو ماسک پہننا ہوگا۔ داخلی راستوں پر سینیٹائزر دستیاب ہوں۔ مزارات اور درگاہوں پر احتیاطی تدابیر اور ہدایتی بینرز آویزاں کیے جائیں گے۔ رش سے بچنے کے لیے زائرین کو 10 منٹ تک مزارات میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 50 سال سے زائد عمر کے افراد، بچوں اور کھانسی بخار کی علامت والوں کو اجازت نہیں ہوگی۔ مزارات پر روزانہ اسپرے اور دھلائی کرنا لازمی ہوگا۔ لنگر پر پابندی ہوگی۔ آزاد نوڈیو 24 نیوز کراچی۔ بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہتے ہیں کلبھوشن کے لیے آرڈیننس رات کے اندھیرے میں لایا گیا۔ عمران خان بھارتی جاسوس کو NRO دینا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ بنی گالہ تک پیغام پہنچانا ہے، کشمیر کے فیصلے کشمیری کریں گے۔ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں انتخابی ماحول گرما دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے الیکشن مہم کے دوران وفاقی حکومت پر خوب تابڑ توڑ حملے کیے۔
सहनसा में इंतखाबी जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने दो टोक पैगाम दिया कि कश्मीरियों के हुकूक पर सौदेबाजी नहीं होने देंगे। चाहते हैं कश्मीर में भी इस्लामाबाद जैसा वजीर आजम ना हो कि कश्मीर के फैसले यहाँ कश्मीर के सरजमीन पे किया जाए, इस्लामाबाद में नहीं, बनी गाला में नहीं, वजीर आजम में नहीं, कि हम कश्मीर पे सौदा की इजाजत नहीं देंगे। तो जी बिल्कुल इसका मतलब ये भी है कि हम अपना मकबूजा कश्मीर के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। इससे कबल हजीरा में खिताब में बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा दोहरा दिया। कहा कश्मीर के लिए 1000 साल भी जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, किसी कठपुतली वज़ीर आज़म की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। कश्मीर के फैसले सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अवाम करेंगे। इस्लामाबाद में बैठे हुए कठपुतली वज़ीर आज़म के डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। हमारा नारा सबसे बारी राय शुमारी, राय शुमारी। ये वो कठपुतली है जिसने वादा किया था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा। कश्मीर का सफीर बनते बनते वो कुलभूषण यादव का वकील निकल चुका है। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि हुकूमत ने बजट में टैक्सेस का तूफान खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के आवाम महंगाई से परेशान हैं। पीपल्स पार्टी कभी कश्मीरियों को लावारिस नहीं छोड़ेगी। आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का जाला होगा। और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत नाकामियों की जिम्मेदारी साबका हुकूमत पर डाल रही है। कराची की पूरी इंडस्ट्री बंद है। जून में गैस किल्लत का ये हाल है तो दिसंबर में क्या हाल होगा। करप्ट हुकूमत महंगी तरीन बिजली बना रही है। नैब न्याजी गठजोड़ हमसे सस्ता गैस का मुआहदा ला कर दिखाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची का अचानक दौरा किया। तारिक रोड पर बुजुर्ग कोल्ड कॉर्नर के मालिक की शिकायत पर एक्शन लेते हुए इंतजामिया को तंग न करने की हिदायत कर दी। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह के हमरा शहर के अचानक दौरे पर निकले तो तारिक रोड पर कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर पर प्यास बुझाने के लिए रुक गए। मुराद अली शाह ने कोल्ड ड्रिंक खरीदी। पैसे देने के बाद बुजुर्ग मशरूब फरोश से पूछा कि बोर्ड पर शिकायत दर्ज है, मैं वजीर आला सिंध हूँ, आपको कौन तंग करता है। नाबीना बुजुर्ग ने सीएम को बताया कि पुलिस तंग करती है, इंतजामिया करती है, जिस पर वजीर आला सिंध ने इंतजामी अफसरों को फौरी फोन करके हिदायत की कि बुजुर्ग को तंग ना किया जाए। वजीर आला सिंध ने अफसरान को ये भी कहा कि जब यहाँ आए तो इन बुजुर्ग से खरीदारी भी करें। बुजुर्ग मशरूब फरोश का कहना था कि बूढ़ा और नाबीना हूँ, मेहनत करके रोजी कमाता हूँ। वजीर आला सिंध से शिकायत की है, उम्मीद है अब KMC वाले तंग नहीं करेंगे। मैं ऊपर लिखा भी है कि भाई मैं बूढ़ा आदमी है, अंधा आदमी है, मेरे को परेशान नहीं करो, मैं बीज नहीं मांग सकते। अच्छा, वज़ीर आला साहब ने क्या बोला, आपसे क्या कहा? उसने बोला कोई भी तेरे को तंग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वजीर आला सिंध ने अहकामात दिए कि बुजुर्ग के कारोबार को बाइज्जत तरीके से करने में सहूलत फराहम की जाए। ये रिज़्क़ के हलाल कमाने की बेहतरीन मिसाल है, हमें इसकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। मीर शब्बीर बजरानी, तैमूर तालपुर, मुर्तज़ा वहाब भी वजीर आला के हमरा थे। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ मोहम्मद कामरान, 24 न्यूज़, कराची। मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत में बेहतरी आने लगी। PDM सरबराह को ICU से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना ने 5 जुलाई को इस्लामाबाद में PDM का हंगामी सरबराही इजलास भी तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान की सेहत में बेहतरी आने लगी। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज सरबराह JUI को ICU से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान को 2 रोज तक अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। साबिक वजीर आजम और सदर मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता करके खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान सेहतयाबी के साथ ही सियासत में भी मुतहरिक होने लगे। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान 4 जुलाई को सवात में जलसे में शरीक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को टफ टाइम देने की भी तैयारी कर ली। 5 जुलाई को इस्लामाबाद में PDM का हंगामी सरबराही इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत होगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिहाड़ी की मारूफ सियासी शख्सियत अयूब बंदेशा साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। अयूब बंदेशा ने लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा से मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पार्टी के दरवाजे हर मुहिब वतन के लिए खुले हैं। हमारी सियासत का मकसद पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह है।
छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने कराची में कायम मवेशी मंडी का रुख कर लिया। कुर्बानी के जानवर देखने के लिए खवातीन भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। मजीद जान लेते हैं, राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मवेशी मंडी में, जो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। और कराची की मंडी की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर दिन हो या रात आवाम का तांता बंधा रहता है। ना सिर्फ नौजवान बल्कि फैमिलीज भी बड़ी तादाद में इस मवेशी मंडी का रुख करती हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। आज जो छुट्टी का दिन है, आप लोगों ने मंडी में बिताया है जी, क्या कहेंगी कीमतों के बारे में? इस वक्त कीमतें मुनासिब हैं, ज़्यादा हैं पिछले साल के मुकाबले? नहीं, महंगाई तो बहुत है, ले नहीं सकते, फिर एंजॉय करने के लिए हम आ सकते हैं यहाँ। बिल्कुल, यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं उनका ये कहना है कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं, मगर वो ख़रीदारी नहीं कर सकते। मंडी आकर जानवरों के साथ, मवेशियों के साथ सेल्फीज़ बनाकर आज का दिन उन्होंने अपने छुट्टी का बिताया और सिर्फ सेल्फीज़ बनाकर खुशी का राहिल बेग, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी तोंद वाले थानेदार तो बहुत देखे होंगे, मगर हम आपको मिलवा रहे हैं कराची के कैसे थानेदार से जो न सिर्फ खुद जुडो कराटे के माहिर हैं बल्कि मातहत एहलकारों को भी दौरान ड्यूटी तवाना रहने के गुर सिखाते हैं। दानियल सैयद की रिपोर्ट देखिए। ये है कराची थाना शाह फैसल कॉलोनी के SHO शहजादा सलीम। कम उम्री से ही जूडो कराटे से जुनून की हद तक लगाव रखने वाले थानेदार मुल्क और बैरून मुल्क मुनक्किद होने वाले कई मुकाबलों और टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। ये शौक़ मुझे जब मैं 7 साल का था तब से मैंने कराटे स्टार्ट किया था। क्योंकुशन कराटे, फुल बॉडी कॉन्टेक्ट कराटे के अंदर। उसके बाद मैं उसी स्टाइल के अंदर प्रोविंशियल नेशनल टूर्नामेंट भी लड़ता रहा और उसमें चैम्पियन बना। इंस्पेक्टर शहजादा सलीम ने फिटनेस बरकरार रखने के लिए रोज वर्जिश को मामूल बना रखा है। कहते हैं 3 डाकुओं को तन्हा बगैर असलहे के काबू करके हवालात पहुंचा चुका हूं। ख्वाहिश है कि पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाले नौजवानों को तरबियत फराहम करूं। कराटे के माहिर थानेदार को जापानी कराटे की नई किस्म शीदोकान के नाम से पाकिस्तान में मुतारिफ कराने का एजाज भी हासिल है। सिंध पुलिस के इंस्पेक्टर शहजादा सलीम इस हुनर से सैकड़ों नौजवानों को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर जितवा कर कई मेडल्स अपने नाम करवा चुके हैं। कैमरामैन जानशीर खान के हमरा दानियल सैयद, 24 न्यूज़ कराची। शहर कायद के बच्चों में ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट्स का शौक बढ़ने लगा। पसमानदा इलाके के बच्चों ने ग्राउंड्स के दम दस्तियाबी के बावजूद अपने शौक को मान ना पड़ने दिया। समीन नवाज की रिपोर्ट देखते हैं। यूं तो टेक्नोलॉजी के इस दौर में खेल कूद की सरगर्मियां ना होने के बराबर नजर आती हैं, मगर बेहतर जिस्मानी नशोनुमा के लिए फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है। ताइक्वांडो हथियारों के बगैर एक मार्शल आर्ट है जिसकी जाए पैदाइश कोरिया है। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में अपनी मदद आपके तहत लगाया जाने वाला ताइक्वांडो ट्रेनिंग कैंप में फिजिकल ट्रेनिंग और बच्चों के मुख्तलिफ मुकाबले भी करवाए जाते हैं। बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं। चाहूँगी कि सारी लड़कियां ताइक्वांडो करें और अपने आप को बचाएं। आजकल के दौर में आपको पता है लड़कियों को सेल्फ डिफेंसिव होना चाहिए ताकि वो अपने आप को जो है प्रूफ भी कर सकें और डिफेंस भी कर सकें। बच्चे सिर्फ गैजेट्स, लैपटॉप, मोबाइल इन्हीं के अंदर हैं, इसके अलावा उनके पास कोई एक्टिविटी है ही नहीं। ताइक्वांडो ट्रेनर हसन अली का कहना है कि इस खेल को फरोग देने की जरूरत है। ये बच्चे मुश्किल सूरत हाल में गेम करते हैं, हुकूमत को चाहिए हमें सपोर्ट करें और ग्राउंड्स मुहैया करें। क्या ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस के लिए भी जरूरी है और सेहतमंद माशरा जब ही फरोग पाता है जब खेल के मैदान आबाद हों। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़ कराची।